نیوز اینکر کی ضرورت ہے۔ اردو سے وابستہ خواہش مند ہمارے دفتر بھارتی ڈیجیٹل واقع غلام چوراہا نزد وشوا شانتی کالج 5 تا 7 بجے شام رابطہ کریں یا کال کریں 9553521111۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ تکبر، خیانت اور قرض سے پاک ہو تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ترمذی 1572۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تمام محکموں کے تمام افسران اور عملہ شدید بارش کی وارننگ کے پیش نظر چوکس رہے۔ ضلع کلکٹر ٹی ونائے کرشنا ریڈی نے دیا مشورہ۔ انہوں نے قصبوں دیہاتوں کی عوام پر بھی زور دیا کہ وہ چوکس رہے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرے تاکہ کہیں بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو۔ محکمہ موسمیات کی وارننگ کے پیش نظر ضلع میں اگلے 2 روز تک موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ کلکٹر ٹی ونائے کرشنا ریڈی نے تمام محکمہ جات کے افسران اور عملے کو الرٹ رہنے کا حکم دیا۔ قصبوں اور دیہاتوں کی عوام کو بھی الرٹ کیا جائے اور احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے تاکہ کہیں بھی کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ کلکٹر نے 4 شعبے کو انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفس کمپلیکس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے تحصیلداروں، ایم پی ڈی اوز، میونسپل کمشنروں اور دیگر متعلقہ حکام کے ساتھ جائزہ لیا اور احتیاطی تدابیر کا مشورہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کے افسران و عملے کو ہدایت دی کہ وہ اپنے دفاتر میں موجود رہے اور فیلڈ کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے اور عوام کو کسی بھی قسم کے مشکلات کا سامنا کرنے کی صورت میں فوری ریلیف کے اقدامات کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار رہنے کا مشورہ دیا اور یاد دلایا کہ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر تعطیلات بھی منسوخ کر دی گئی چونکہ اگلے 48 گھنٹوں میں شدید بارش کا امکان ہے۔ کلکٹر نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ صرف ہنگامی صورتحال میں ہی گھروں سے باہر نکلے اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے عہدیداران کو ہدایت دی کہ وہ تمام رہائشی علاقوں میں مائکرو فون کے ذریعے مہم چلائے تاکہ عوام کو چوکنا کیا جا سکے۔ کلکٹر نے تجویز پیش کی کہ نظام آباد شہر کے ساتھ ساتھ بودھن، آرمور، بھیمگل میونسپل ٹاؤن میں ہنگامی حالات میں اٹھائے جانے والے راحتی اقدامات کے بارے میں عوام کو یقین دلانے کے لیے متعلقہ وارڈوں میں فرضی مشقتیں کی جائے اور حکم دیا کہ عوام نشیبی علاقوں اور سیاحی مقامات پر نہ جائے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرے۔ مچھلیاں پکڑنے اور تیراکی کے لیے تالابوں، نہروں اور آبی ذخائر میں داخل نہ ہو۔ جہاں ضرورت ہو وہاں پولیس کی نفری تعینات کی جائے گی اور کہا کہ سیلاب سے اب تک متاثر ہونے والے علاقوں پر مزید خصوصی توجہ دی جائے اور چوکسی اقدامات کیے جائے۔ میونسپل کمشنروں کو ہدایت دی کہ وہ شہری علاقوں میں فوری طور پر اہم گٹروں کی صفائی کریں اور ضرورت کے مطابق فوراً امدادی اقدامات کرنے کے لیے جے سی بی اور ریت کے تھیلوں کو تیار رکھے۔ تمام منڈلوں میں کنٹرول روم قائم کیے جائے اور عوام کو معلومات فراہم کی جائے۔ انہوں نے ٹرانسکو ایس سی رویندر کو ہدایت دی کہ وہ فیلڈ لیول پر عملے کو تیار رکھے۔ اگر شدید بارش کی وجہ سے بجلی کی سپلائی میں کوئی بھی خلل ہوتا ہے تو فوراً جواب دے اور بحالی کے اقدامات کرے۔ ٹی پی سی سی مہم کمیٹی چیئرمین سابق ایم پی مدھو یاشکی گوڑ نے واضح کیا کہ مودی حکومت عوام کی مرضی کے مطابق بی سی بل کو منظور کرے۔ تلنگانہ تحریک کے دوران پارٹیوں اور عوامی نمائندوں پر جس طرح دباؤ ڈالا اور احتجاج کیا اسی طرح عوام بل کی منظوری کے لیے بی جے پی قائدین کے خلاف احتجاج کرے۔ مدھو یاشکی گوڑ نے کیا مطالبہ۔ مرکزی حکومت کی جانب سے عوام کی مرضی کے مطابق بی سی کے لیے 42% ریزرویشن بل کی منظوری دی گئی۔ ٹی پی سی سی مہم کمیٹی کے چیئرمین سابق ایم پی مدھو یاشکی گوڑ نے کہا کہ اس سے آگاہ کیا جانا چاہیے۔ مدھو یاشکی گوڑ نے کورٹلا حلقے کے مٹپلی قصبے میں کانگریس پارٹی کے حلقہ انچارج کے ساتھ ایک میڈیا کانفرنس میں بات کی۔ مدھو یاشکی گوڑ نے واضح کیا کہ بی سی کے لیے 42% ریزرویشن بھی اسی طرح حاصل کیا جائے گا جس طرح تلنگانہ ریاست کی تشکیل عوام کے مطالبے کے مطابق کی گئی تھی۔
कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत को अवाम की मांग पर ध्यान देना चाहिए और बीसी रिजर्वेशन बिल को लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये अजीब बात है कि अगर बीजेपी मेंबरान असम्बली ने रियासती असम्बली में बीसी के लिए 42% रिजर्वेशन बिल की हिमायत की है, लेकिन दिल्ली में उसे रोका जा रहा। मधु याशिकी गौड ने अवाम से मुतालबा किया कि वो रियासत में बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट को माजूल करे और दबाव डाले जो बीसी बिल को रोक रहे। जिस तरह उन्होंने तेलंगाना तहरीक के दौरान पार्टियों और अवामी नुमाइंदों पर दबाव डाला और एहतजाज किया। उन्होंने मरकज से सवाल किया कि तमिलनाडु में 68% तहफुजात क्यों मुमकिन थे, तेलंगाना में क्यों मुमकिन नहीं। उन्होंने मोदी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर मुल्क में इंतशार फैलाने का इल्ज़ाम आयद किया और तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात और इसके बाद के इंतखाबात में वोट चोरी का इर्तिकाब हुआ था और मुतल्लिका हलकों में लाखों बोगस वोट डाले गए। उन्होंने कहा कि इंतखाबी पोलिंग खत्म होने के बाद वोट फीसद में गैर मामूली इजाफा बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की बेकायदगियों का सबूत है। कहा कि अवाम को राहुल गांधी की तरफ से वोट चोरी के खिलाफ शुरू की जा रही अवामी तहरीक की हिमायत करनी चाहिए जो जमहूरियत का मजाक उड़ा रही है और अवामी तंजीमों और जमहूरियत पसंदों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। इस मौके पर किसान सेल जिला कांग्रेस सदर, बीसी सेल जिला सदर, मिटपल्ली टाउन सदर व दीगर कायदीन मौजूद थे। ఇక్కడ నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే బడుగు బలహీన వర్గాలు కూడా ఎస్పెషల్లీ బీసీ వర్గాలే కాకుండా స్థానిక ఎంపీని అడ్డుకొని ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన పార్లమెంట్లో అమెండ్మెంట్ జరగాలనంటే అది పార్లమెంట్ సభ్యుల యొక్క ఒత్తిడి అవసరం. దాంట్లో స్థానిక ఎంపీ బీజేపీ పార్టీ వ్యక్తి కాబట్టి అతనిపైన ఒత్తిడి తీసుకురావాలని కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధిలో శంకించాల్సిన అవసరం లేదు. రెండోది, ఏ విధంగా బీజేపీ పార్టీ నరేంద్ర మోదీ ఓట్ చోరీ ద్వారా గతంలో మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం బూత్ క్యాప్చరింగ్ జరిగేది. ఇవాళ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకొని నరేంద్ర మోదీ గారు ఎలక్షన్ కమిషన్ గుప్పిట్లో పెట్టుకొని ఓటు చోరీ చేస్తూ గెలుస్తూ వస్తూ ఉంది. అది మొన్నటి 2024 పార్లమెంట్ ఎన్నికలు కావచ్చు, తర్వాత జరిగిన మహారాష్ట్ర ఎన్నికలలో, కర్ణాటకలో జరిగిన పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో మహాదేవ్పూర్ అనే కాన్స్టిట్యున్సీ యొక్క ఉదాహరణనే తీసుకొచ్చి ग्लोबल 369 नामी डिवाइस को डॉक्टर एम नरसिम्हाचारी ने डिजाइन किया था, जो कि जिला निजामाबाद के नवीपेट मंडल मुस्तकर के एक नौजवान साइंसदान को आलमी पेटेंट दिया गया। उन्होंने वजाहत की कि ये आला दिल के दौरे से बचाता है और खून में ऑक्सीजन की मिकदार को 99% तक बढ़ाता है। जिला इंदौर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान साइंसदान और आलमी पेटेंट होल्डर डॉक्टर मंडाजी नरसिम्हाचारी हैदराबाद हाईटेक सिटी के हाईटेक नुमाइश ग्राउंड में मुनक़िदा अगस्त फेस्ट तकरीब में मेहमान खुसूसी शिरकत की। इसके अलावा जिन्हें अपने बनाए हुए आले ग्लोबल 369 के लिए आलमी पेटेंट होल्डर बनने के लिए मदऊ किया गया था। रियासत के IT वजीर डी श्रीधर बाबू, जो इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, को नौजवान साइंसदान डॉक्टर मंडाजी नरसिम्हाचारी ने आलमी पेटेंट शुदा डिवाइस ग्लोबल 369 दिखाया और उन्होंने वजीर को ये भी बताया कि इसने जो डिवाइस ग्लोबल 369 डिज़ाइन किया है, इसके पेटेंट के हुकूक भी दिए गए हैं। उन्होंने वजीर को बताया कि ये आला दिल के दौरे से बचाता है और खून में ऑक्सीजन की शरह को 99% तक बढ़ाता है और इसके दिगर बहुत से सेहत के फ़वायद है। नरसिम्हाचारी ने कहा कि वजीर श्रीधर बाबू ने इस आले पर खुशी का इजहार किया और उन्हें मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ये आला तेलंगाना के लिए फ़ख्र की बात है और कहा कि वो इसे जल्द अज जल्द वजीर आला की तवज्जो दिलाएंगे। 2009 నేను హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయ్యాను. ముఖ్యంగా ఏంటంటే నాకు ఇప్పటి వరకు 2 పేటెంట్లు ఉన్నాయండి. ఒకటి నేషనల్ పేటెంట్, ఇంకోటి ఇంటర్నేషనల్ పేటెంట్. ఫస్ట్ పేటెంట్ ఏంటంటే మాడిపోయిన ట్యూబ్ లైట్ను కేవలం 9 రూపాయలతోనే వెలిగించే ప్రయోగాన్ని తయారు చేయడం జరిగింది. ఇది నేను 2000లో మొదలు పెట్టాను. అంటే యాక్చువల్ 94లో మొదలు పెట్టాను. 2000లో సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాను. తర్వాత 2005 తర్వాత ఆచరణలోనికి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఒక ట్యూబ్ లైట్ కొనుక్కోవాలి అంటే సుమారు
ఒక 250-300 రూపాయల దాకా ఖర్చు చేయాలి. దాన్ని నేను ఒక సామాన్య మానవుడికి వెలిగించుకునేలాగా 9 రూపాయలతోటి ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశానండి. అది విజయవంతంగా కూడా వెలగడం జరిగింది. తర్వాత దాన్ని ఇంకొక పద్ధతిలో చేసి నేను ఎన్ఐడిలో పార్ట్నర్షిప్గా చేసుకుని ఎన్ఐడి వాళ్ళు నాతో పార్ట్నర్ చేసుకున్నారంటే అక్కడ చేశాక నేను 2009 నుండి ఎన్ఐడిలో సెటిల్ అయ్యాక సుమారు దీన్ని కొద్దిగా ఎక్కువ అంటే లాభం కూడా కొద్దిగా చూసుకోవాలి కాబట్టి 99 రూపీస్ తోటి సుమారు నేను 10 లక్షల పీసులు అమ్మానండి ఇప్పటి వరకు. నేను అంటే ఇది ఎందుకంటే ఒక 250-300 రూపాయలు కొనే లైటు 10 లక్షలు ఎందుకు అమ్మానంటే ఆ 10 లక్షల ఇళ్లలో ఒక వెలుతురు ఉందండి ట్యూబ్లైట్తో. అంటే ఒక 5 నుంచి 10 సంవత్సరాల వరకు ట్యూబ్లైట్ పాడవదు, అటువంటిది కనుక్కున్నాను. ఇంకోటి దానికని ఇంకా పెద్ద ఇంపాక్ట్ ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో बारिश का पानी जमा होने से और आलूदा माहौल की वजह डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसे अमराज फैलने का खदशा है। अवाम वबाई अमराज से चौकस रहे। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने अवाम को दिया मशवरा। निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण ने तमाम अवाम को अहम हिदायत जारी की। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो जिले में हालिया शदीद बारिशों की वजह से मौसमी अमराज से होशियार रहे और कहा कि बारिश का पानी जमा होने ना दे। आलूदा माहौल की वजह से डेंगू, टाइफाइड और मलेरिया जैसे अमराज फैलने का खतरा है। अर्द गर्द के इलाकों में जमा होने वाले फुजले को फौरन साफ करे और अपने अतराफ व अकनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखे। इसी तरह उन्होंने कहा कि सीवरेज के नालियों, बिजली के खंभों और तारों जैसी जगहों पर खतरनाक सूरत हाल पैदा होने का खदशा होता है। वालिदैन को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें और बाहर निकलते वक्त जरूर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। एमएलए ने महकमा बल्दियात और बिजली महकमा के ओहदेदारान को खुसूसी अहकामात जारी किए। उन्होंने मशवरा दिया कि वो खतरनाक जगहों पर इंतबाही बोर्ड और निशानियां लगाए और उन पर मुसलसल निगरानी रखे। हुक्काम को हिदायत दी कि वो अवाम की हिफाजत के लिए मुनासिब इक़दामात करें। तेलंगाना के महबूब नगर जिले में बारिश के दौरान बड़ा हादसा टल गया। तफसील देखते हैं। तेलंगाना के महबूब नगर जिले के देवत्तीपल्ली इलाके में एक खांगी बस बारिश के दौरान सड़क बह जाने के बाद पानी में जा गिरी। इत्तलात के मुताबिक ये हादसा सुबह तकरीबन 7 बजे NH 44 से 1 किलोमीटर दूर पेश आया, जब बस एक खांगी कंपनी के मुलाजमीन को ले जा रही थी। महबूब नगर रूरल पुलिस के मुताबिक बस में तकरीबन 18 मुलाजमीन सवार थे, जो खुशकिस्मती से महफूज रहे और कोई जख्मी नहीं हुआ। खवातीन और बच्चों की बहबूद के महकमे के ज़ेरे एहतमाम माखलूर के ZPI स्कूल में मंशियात के इस्तेमाल के मुज़िर असरात के बारे में आगाही प्रोग्राम का इनेकाद। मंशियात से दूर रहने और अपनी तालीम पर तवज्जो देने का तलबा को ज़िला बहबूद अफसर रसूल बी ने दिया मशवरा। तलबा ने मंशियात के खिलाफ इज्तिमाई अहद लिया। जिला बहबूद ऑफिसर रसूल बी की तरफ से महकमा खवातीन और अतफाल बहबूद के ज़ेरे एहतमाम माकलूर मंडल के बोरगांव के जिला परिषद स्कूल के साथ साथ जिले के तमाम स्कूलों, कॉलेजेस और सरकारी दफातर में मंशियात के खिलाफ इज्तिमाई अहद लिया गया। हर एक से मंशियात की स्मगलिंग और गलत इस्तेमाल के खिलाफ जारी जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। मंशियात के इस्तेमाल के मुज़िर असरात के बारे में मुकम्मल आगाही पैदा करने और मुआशरे में किसी को भी मंशियात का शिकार होने से रोकने के लिए सख्त मेहनत करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने मंशियात से पाक मुआशरे के मकसद के तौर पर पुलिस को मंशियात की खरीदो फरोख्त करने वाली अवाम के बारे में मालूमात फराहम करने का अज़्म किया। उन्होंने रज़ाकार तंजीमों और तलबा पर जोर दिया कि वो आगाही पैदा करने और मंशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ मिलकर मुकम्मल काम करें। इस मौके पर ICDS, CDPO, कम्युनिटी एजुकेटर, तमाम डिविजन्स के CDPOs, सुपरवाइजर्स, ICPS और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना के 3 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने इंतहाई खतरे की वार्निंग जारी की। अवाम मोहतात रहे। महकमा मौसमियात ने आज मेदक, सिंगारेड्डी, विकाराबाद अजला के लिए रेड अलर्ट इंतहाई खतरे की वार्निंग जारी की है। इन अजला में इंतहाई शदीद बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया। इसी तरह निर्मल, निजामाबाद, कामारेड्डी, जयशंकर, भोपालपल्ली,
भद्राद्री, कोत्तागुडम, महबूबाबाद, सूर्यापेट, मिर्चल, मलकाजगिरी अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट, शदीद बारिश की वार्निंग जारी की गई। जहां बहुत ज़्यादा बारिश की पेशन गोई की गई। रियासत के दिगर तमाम अजला के लिए येलो अलर्ट, शदीद बारिश का इम्कान जारी किया गया, जहां मामूल से ज़्यादा बारिश मुतवक्के है। तेलंगाना यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज को कमज़ोर करने के लिए हॉस्टल की सहूलियात फ्राहम नहीं कर रही। पीडीएसयू ने लगाया इल्ज़ाम। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा को हॉस्टल की सहूलियात फ्राहम ना करने पर एहतजाज करते हुए वीसी का पुतला नजर आतिश किया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा के लिए पीडीएसयू ने हॉस्टल की सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज के लिए यूनिवर्सिटी के वीसी का पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर पीडीएसयू जिला जनरल सेक्रेटरी राजेश्वर ने इल्ज़ाम आयद किया कि वीसी आगाज से ही तेलंगाना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज के क़याम में रुकावटें डाल रहे। उन्होंने कहा कि तीसरी काउंसलिंग में नशिस्तें हासिल करने वाले इंजीनियरिंग के तलबा को हॉस्टल की सहूलियात फ्राहम नहीं की जा रही और हॉस्टल की सहूलत के बगैर तलबा बिलखुसूस लड़कियां इंजीनियरिंग कोर्सेस में शामिल नहीं हो सकती। उन्होंने सवाल किया कि हॉस्टल की सहूलियात सेकेंड पीजी करने वाले तलबा को क्यों फ्राहम की जा रही लेकिन इंजीनियरिंग के तलबा को नहीं, और कहा कि यूनिवर्सिटी कैंपस में 200 कमरों की गुंजाइश वाले 2 लड़कों के हॉस्टल और 100 कमरों पर मुश्तमिल एक गर्ल्स हॉस्टल है। जब तक नया गर्ल्स हॉस्टल नहीं बनता उस वक्त तक इन हॉस्टल्स को इंजीनियरिंग कॉलेज की तालिबात के लिए एडजस्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वीसी की लापरवाहियों की वजह से दूसरी काउंसलिंग में कोर्सेज नहीं करवाए गए और वीसी के करीबी रिश्तेदार निजामाबाद के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के ज़ेर इंतज़ाम काम करते हैं और उस प्राइवेट कॉलेज की तारीफ हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा। హాస్టల్ అడ్మిషన్ లేక అడ్మిషన్లు క్యాన్సిల్ చేసుకునే పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. చాలా మారుమూల గ్రామాల నుంచి ఈరోజు వేరే వేరే జిల్లాల నుంచి ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చినా కానీ వాళ్ళకు హాస్టల్ సౌకర్యం లేదంటే ఈరోజు ఇంజనీరింగ్ విద్యకు చాలామంది విద్యార్థులు దూరం అవుతున్నారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ బాయ్స్ హాస్టల్ 200 రూమ్లు, అదేవిధంగా గర్ల్స్ హాస్టల్ 100 రూమ్ల కెపాసిటీతో ఈరోజు నిర్మించబడ్డది. దీనిలో కొత్త హాస్టల్ అయ్యే వరకు కూడా ఈరోజు అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి ఈరోజు విద్యార్థులకు కల్పించాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉన్నది. ఈరోజు మొత్తం కూడా ఇంజనీరింగ్ కోర్సులలో ఈరోజు విద్యార్థులు జాయిన్ కాకపోతే రాను ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలను ఎత్తివేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా వీసీ మొదటి నుంచి ఈరోజు మొదటి నుంచి కూడా ఇక్కడ కళాశాల ఏర్పడడానికి మొత్తం వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు. రెండో కౌన్సిలింగ్లో పెట్టాల్సిన కోర్సులు పెట్టకుండా నిర్లక్ష్యం వహించిండు. మూడో కౌన్సిలింగ్లో విద్యార్థులకు ఈరోజు సీట్ వచ్చిన హాస్టల్ అవకాశం లేదని ఈరోజు మొత్తం కూడా ప్రకటించిండ్రు. కేవలం ఈరోజు మొత్తం కూడా ఇక్కడ వారికి సంబంధించినటువంటి దగ్గర బంధువులకు ఓ ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ఉంది, ఆ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల మెప్పు కోసం ఈరోజు ఇదంతా చేస్తున్నారు. तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवास टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़ई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111।